کو بتائیں صوبائی انتخابات کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، سیاسی جماعتیں تاحال انتخابات کے حوالے سے لائحہ عمل تشکیل دینے میں ناکام۔ الیکشن کمیشن نے ملبہ فنڈز کی عدم فراہمی پر ڈال دیا، ملک بھر میں ایک تاریخ پر انتخابات کرانے بارے کوئی فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ رہنما جماعت اسلامی میاں طاہر ایوب کا کہنا تھا کہ دونوں بڑی پارٹیوں کو ایک جگہ بیٹھانا جماعت اسلامی کی اہم کامیابی ہے۔ اب انتخابات کے حوالے سے لائحہ عمل طے کرنا ہوگا۔ میاں طاہر ایوب کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی استحکام کے لیے انتخاب مگر ان کا ایک ہی دن انعقاد بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ عوام بہت پریشان ہے اور ہر طبقہ فکر کے لوگ پریشان ہیں، کیونکہ مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور گورننس نام کی چیز کہیں نہیں ملتی۔ تو اس لیے یہ جب تک یہ تمام مسئلے اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی نہ ہو۔ سیاسی رہنما میاں طاہر ایوب نے کہا کہ اگر الگ الگ تاریخوں میں انتخابات ہوئے تو ان پر اعتراضات ہوں گے۔ اعتراضات سے بچنے کے لیے ایک ہی روز میں انتخابات ضروری ہیں تاکہ سبھی پارٹیوں کے لیے نتائج قابل قبول ہو سکیں۔ ہر پارٹی جو ہے وہ دو دو قدم پیچھے ہٹ کے کسی ایک تاریخ پہ اتفاق کر کے الیکشن پورے ملک میں ایک ہی تاریخ میں ہو جائیں، تاکہ یہاں پہ کسی بھی پارٹی کی حکومت بنے وہ اسٹیبل حکومت بنے اور اپنی کوئی معاشی پالیسیاں لا سکے، تاکہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو، عوام کو روزگار ملے اور گورننس بہتر ہو، تاکہ پاکستان کے عوام بھی سکھ کا سانس لیں۔ بروز منگل مذاکرات کے ذریعے انتخابات کی تاریخ طے نہ ہونے کی صورت میں سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے گا۔ کیمرامین شاذب کے ساتھ عبدالرحمان، سی ڈی 41 فیصل آباد۔ سوئی گیس کے صنعتی صارفین کے لیے بری خبر، ایس این جی پی ایل نے یکم مئی سے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو قیمتوں میں دیے جانے والا ریلیف ختم کر دیا۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ، سرجیکل آئٹمز اور چمڑا سیکٹر پر وفاق نے 80 ارب روپے کا ریلیف ختم کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں عمیر عصمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ جی، سوئی گیس کے صنعتی صارفین کے لیے بری خبر ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو گیس کی سبسڈائز قیمتوں پر فراہمی کی جا رہی تھی 5 سیکٹرز کو، جس میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سیکٹر شامل ہے، چمڑے کے کاروبار سے متعلقہ کارخانے ہیں، سرجیکل آئٹمز تیار کرنے والے کارخانے ہیں، ان سمیت 5 سیکٹرز کو ریلیف لانا 80 ارب روپے کا ریلیف فراہم کیا جا رہا تھا۔ تو آئی ایم ایف کی ہدایت پر وفاقی حکومت کی جانب سے وہ ریلیف ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یکم مئی سے نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل ایس این جی پی ایل حکام کی جانب سے ان 5 سیکٹرز کو $9 کے حساب سے آر ایل این جی کی فراہمی کی جا رہی تھی، تاہم آئی ایم ایف کی جانب سے وفاقی حکومت کو ہدایات جاری کی گئیں کہ اس حوالے سے جو سبسڈیز فراہم کی جا رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے، تو اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے وفاقی حکومت کی ہدایت پر ایس این جی پی ایل کی جانب سے سبسڈائز ریٹس جو ہیں وہ یکم مئی سے ختم کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل وفاقی حکومت کی جانب سے جو بجلی میں سبسڈائز ٹیرف ان 5 سیکٹرز کو یا بالخصوص ٹیکسٹائل سیکٹرز کو فراہم کیا جا رہا تھا وہ ختم کیا ہے، اور اب اس کے بعد جو گیس کی قیمتوں میں ملنے والا ریلیف ہے وہ بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ان 5 سیکٹرز کو سالانہ جو 80 ارب روپے کا ریلیف فراہم کیا جا رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ عمیر عصمت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایس این جی پی ایل کی جانب سے میٹر رینٹ 40 روپے سے بڑھا کر 500 روپے کر دینے پر تاجر آگ بگولا۔ تاجروں کا کہنا ہے ایک طرف گیس کی بندش ہے تو دوسری جانب ماہانہ میٹر رینٹ بڑھا کر عوام سے بچا کچا ریلیف بھی واپس لیا جا رہا ہے۔ بات کر لیتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز، بتائیے گا اس حوالے سے۔ ایک طرف تو سوئی گیس کی فراہمی کے حوالے سے بات کی جائے تو سوئی گیس نہ ہونے کے برابر ہے، اور دوسری جانب سوئی گیس کے جو میٹر ہے اس کے اوپر میٹر کا جو رینٹ ہے وہ 40 روپے سے بڑھا کے 500 روپے فی ماہانہ کر دیا گیا، جس کے بعد فیصل آباد کے کاروباری حضرات کی جانب سے انتہائی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رانا عبدالغفور موجود ہیں جو کہ ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے صدر، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یہ رینٹ بڑھ جانے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، ان کے کمنٹس کیا ہیں، بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ رانا صاحب بتائے گا کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ جو رینٹ 40 روپے ہوا کرتا تھا وہ 500 روپے کر دیا گیا اور 4 مہینے پہلے سے اس کو اپلیکیبل کر دیا گیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بٹ صاحب، گورنمنٹ جو کرنٹ ڈیفیسٹ خسارہ چل رہا ہے ان کا، اس کو پورا کرنے کے لیے انہیں عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ 40 روپے دیکھیں 1 میٹر کا رینٹ چل رہا تھا، جو عام بندے کا 250-300 روپے آتا تھا گیس کا بل، اب گیس بھی نہیں آ رہی۔ پورا رمضان المبارک ہم نے گیس کے بغیر گزارا ہے، ایل پی جی کے ساتھ گزارا ہے 310 روپے، 300 روپے، 5 سے 6 ہزار روپے ایل پی جی سلنڈر ہم نے بھروائے ہیں، اور ساتھ ہمیں
500 रुपया इन्होंने बगैर गैस के साथ डाल के तो हज़ार रुपया बिल भेज दिया। ये सरासर ज़्यादती है। एक गरीब बंदा देखें, यहाँ पे एक तरफ आप आटे का रिलीफ मुफ्त देने की कोशिशें कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसके पैसे जो है वो आप इस तरह पूरे कर रहे हैं। ये सस्ता ईंधन ही एक ऐसी चीज़ थी कि लोग कहीं भी गरीब बस्तियों में भी जाते थे, घर देखते थे, सबसे पहले ये देखते थे कि यहाँ पे गैस है। अब मुझे लगता है इन्होंने फिर लोगों को वही लकड़ियों वाले काम पे चला देना है कि लोग लकड़ियाँ का तो टोटल बिल 200-300 रुपए आया करता था, अब तो यार कुछ भी ना चला के आपको 500 रुपए अदा करना पड़ेगा। जी बट साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ, पूरा महीना गैस ही नहीं आई और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग आ रही है। पूरा दिन में सिर्फ 2 घंटे आती है, 2 घंटे गैस चला के, अब वो आपका टाइम ही नहीं है रोटी पकाने का, हंडिया पकाने का टाइम ही नहीं है और उस टाइम सब लोग चलाने की कोशिश करते हैं, प्रेशर भी बिल्कुल नहीं आता और साथ ये लोगों के साथ इंतहाई ज़्यादती है। गवर्नमेंट से ये अपील है कि खुदा का खौफ करें, लोगों को 40 से 500 रुपये पे आप ले गए हैं और बगैर चलाए हुए आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, 500 रुपए जो है रेंट कर दिया गया है मीटर का, उस हवाले से फैसलाबाद के कारोबारी हजरात शिराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के सनतकारों का बिजली के बिलों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। कहते हैं एक तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दिया जाने वाला रिलीफ खत्म कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब बिलों में फिक्स चार्जेस के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी ने मुसलसल बिजली के बिलों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के नायब सदर मियां तारिक कहते हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट रिलीफ खत्म होने से बिलों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। अगर आप पिछले माह की बात करें तो मेरे यूनिट चले थे 5100, 5100 यूनिट चले थे। ये मेरे हाथ में 2,52,000 का बिल है, अगर कैमरा मैन दिखाए। ये पिछले महीने का यूनिट है, देखिए 5100, 5100 और बिल है 2,52,000 का। इस महीने का अगर आप बिल देखें तो इसमें यूनिट चले हैं 4800, 300 यूनिट कम है और बिल जो है 2,92,000 है। मियां तारिक का मजीद कहना था कि बिलों में फिक्स चार्जेस के नाम पर लाखों रुपए कारोबारी हजरात से वसूल किए जा रहे हैं, जो हमारे कारोबार के लिए तबाही का बाइस बन रहा है। इस तरह की सूरत हाल है, टैक्सेस की भरमार है। इलेक्ट्रिसिटी अलग से है, क्वार्टर टैरिफ है, जर्नल से टैक्स है, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इन्होंने 2 माह पहले कहा था कि हम ख़त्म कर दिया है, इस माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फिर लग कर आ गया है। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि अगर जो 2-4 बंदे रह गए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर काम करने वाले, तो खुदा के लिए उनको थोड़ा सा काम कर लेने दें। सनतकार कहते हैं कि मौसम गर्मा में बिजली मजीद महंगी करके आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। हमें इस माह 55 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली के बिल्स मौसूल हुए हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। खराब होने वाले घरेलू मीटर से परेशान सार्फिन की सुनी गई। फेस्को ने 15,000 खराब मीटर्स तब्दील करने की हिदायत जारी कर दी। बात कर लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइए। जी बिल्कुल, ख़राब होने वाले सिंगल फेज़ मीटर्स को तब्दील करने के हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम तर सर्कल्स को अहम हदायत जो है वो जारी कर दी हैं। 10 मई से कबल तमाम तर सिंगल फेज़ मीटर्स जो ख़राब हो चुके हैं सार्फिन को उनको तब्दील किया जाएगा। फेस्को में 15,000 से ज़ायद सिंगल फेज़ मीटर्स इस वक्त जो ख़राब हैं, जो फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तब्दील नहीं किए गए, जिनकी वजह से सार्फिन फ़िक्स बिल देने पर मजबूर हैं। फेस्को हुकाम का यही कहना है कि ख़राब मीटर्स को तब्दील किया जा रहा है ताकि सार्फिन को सहूलियात फ़राहम की जा सके। जो ख़राब मीटर्स हैं उनको 10 मई तक तब्दील करने की जो डेडलाइन है वो दी गई है और सार्फिन को जो बिजली के बिल हैं ख़राब मीटर्स के, वो MNT लैब में टेस्ट करने के बाद भेजे जाएंगे और अगर सार्फिन की जानिब से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल किए गए तो उनको रिवाइज्ड बिल भेजा जाएगा और अगर कम तो सार्फिन को जो है वो भेजे गए बिलों में क्रेडिट करके जो है वो बिल भेजे जाएंगे। फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। फेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की जानिब से सिंगल फेज़ मीटर सब डिवीज़न दफातर को दे दिए गए हैं और 10 मई तक तमाम तर ख़राब मीटर्स जो हैं तो वो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अवैस। फेस्को ने सार्फिन की सुन हिली। खराब घरेलू मीटर तब्दील करने की हिदायत। 15,000 मीटर तब्दील करने की डेडलाइन जारी। अफसरान को 10 मई तक तब्दील करने का हुक्म। और
सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1000 रुपये फी तोला महंगा होकर 2,19,500 रुपये पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत 860 रुपये में इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,88,188 रुपये हो गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, सोने की कीमत एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल। सराफा मार्केट में फी तोला सोने की कीमत 1000 रुपये बढ़ने के बाद 2,19,500 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 860 रुपये इजाफे के बाद 1,88,188 रुपये हो गई। सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 1000 रुपये महंगा। सोने की कीमत में एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल। सराफा मार्केट में भी फी तोला सोना की कीमत 1000 रुपये बढ़ने के बाद 2,19,500 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 860 रुपये इजाफे के बाद 1,88,188 रुपये हो गई। आपको बताएं, सोने की कीमत एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सराफा मार्केट में फी तोला सोना की कीमत 1000 रुपये बढ़ने के बाद 2,19,500 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 860 रुपये इजाफे के बाद 1,88,188 रुपये हो गई। ऐसे हवाले से मजीद बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइए। जी बिल्कुल, सोने की कीमत जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सराफा मार्केट के अंदर फी तोला सोना आज 1000 रुपये महंगा होने के बाद मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर 2,19,500 रुपये पर पहुंच चुका है। जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो आज सराफा मार्केट के अंदर 860 रुपये बढ़ी है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत सराफा मार्केट के अंदर 1,88,188 रुपये हो चुकी है। और जो सोने का कारोबार करने वाले हजरात हैं, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि सोने की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आइंदा भी सोने की कीमत जो है वो बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और इसकी वजह से जो सराफा मार्केट ताजिर हैं, उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि कारोबार जो है वो ना होने के बराबर हैं और जो आम खरीदार हैं वो मार्केट का रुख करना छोड़ते जा रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह यही है कि सोने की कीमत आम आदमी की पहुंच में नहीं रही। पहले जो शादी ब्याह के अंदर सोने का इस्तेमाल होता था वो कम होता जा रहा है, जिसकी जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो उसने ले ली है, क्योंकि सोने की कीमत जो है वो बढ़ने की वजह से इसकी खरीदारी भी कम होती जा रही। जी फजील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फजील आपका। फैसलाबाद 8 बाजारों में तजावुजात का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट कहते हैं ताजरों की मुशावरत से तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइए। जब बात करें यहाँ पर 8 बाज़ारों में, तो यहाँ पर तजावुज़ात का और दूसरा जो मसाइल सामने आते रहते हैं, उस सिलसिले में एक बड़ी अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जहाँ पर बड़े अहम फैसले भी किए गए ताकि इस मसले की जो है वो जड़ को ख़त्म किया जाए, इस मसले को हल किया जाए। तो इस हवाले से साबिक़ डिप्टी मेयर नून लीग के नायब सदर और ताजर रहनुमा अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, बताइएगा क्या अहम फैसले किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल घंटाघर के अंदर फैसलाबाद शहर के जितने भी सदर से सेक्रेटरी थे तमाम उधर इकट्ठे किए और सीओ साहब और सीटीओ साहब से मतलब मीटिंग हुई है। मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि डीसी साहब ऑपरेशन करना चाहते हैं इंक्रोचमेंट का और ट्रैफिक को बेहतर करना चाहते हैं। उसमें ये फैसला किया गया है कि एक तो जो भी हमें जगह मिली हुई है आज से 50 साल पहले, वो जगह हम अपने अपने जो सदर हैं वो पैड पे लिख कर दे देंगे। वो 4 फुट है, 5 फुट है, 3 फुट है। उससे आगे जो भी बढ़ेगा उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा और हमारे जो सदूर हैं उनकी सिफारिश नहीं करेंगे। हम लोग जितने भी सदर हैं, हम सीओ से भी ताउन करेंगे, हम सीटीओ से भी ताउन करेंगे और जो वहाँ पे ड्यूटी देते हैं उनके साथ भी ताउन करेंगे। मैंने सीओ साहब से और सीटीओ साहब से और डीसी साहब ये कहा है कि ये मीटिंगें होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। हमारे ताजरों का गिला यही रहता है कि 1 दिन 2 दिन ऑपरेशन होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। अगर ये ऑपरेशन करना है हमारे मुताबिक करें, इंशाल्लाह कामयाब होगा। और जो सबसे जो मजबूत चीज़ है, इनकी ड्यूटी, कारपोरेशन वाले भी पूरी ड्यूटी करें और जो वार्डन हैं वो भी ड्यूटी करें, तो इंशाल्लाह फैसलाबाद सिटी मुकम्मल तौर पर
खूबसूरत भी हो जाएगा और हमारे गाहकी भी जो दुकानदार की कमी हुई है ना रश की वजह से, वो भी ठीक हो जाएगी। जिस हवाले से अमीन भट्ट का ये मुतालबा है कि यहाँ पर ताजरों की जो रिजर्वेशन है वो ये सामने आती है कि यहाँ पर जो सरकारी इदारे वो अपना काम बर वक्त नहीं करते। अब्दुर्रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब मोहम्मद जावेद कसूरी की जंग आमद। जावेद कसूरी ने सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवारान से मुलाकात की। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी ने जंग का दौरा किया है। अभी जमात इस्लामी जंग के सेक्रेटरीट में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज आपने जंग का दौरा भी किया है, इंतखाबात के हवाले से क्या मंशूर है, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी वो वाहिद सियासी जमात है जिसने सबसे पहले अपने मंशूर का ऐलान किया, और जमात इस्लामी ने अपने मंशूर में पंजाब के अवाम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के साथ ये कमिटमेंट की है कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाएंगे। हमारा अपनी कौम के साथ वादा है कि हम पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से निजात दिलाएंगे। इस वक्त 11,000 अरब आपका टोटल बजट है, 4,000 अरब रुपये आप हर साल सूद के लिए निकालते हैं, और सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। जमात इस्लामी इससे पाकिस्तानी कौम को निजात दिलाएगी। हमने ऐलान किया है कि हम हुकूमत के सादा तर्ज हुकूमत का एक पूरा मॉडल अपनी कौम के सामने लाएंगे। हमने कौम के साथ कमिटमेंट की है कि हम इस मुल्क को इन बहरानों से निजात दिलाएंगे, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त कर्जों की मईशत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, जमात इस्लामी इस महंगाई और बेरोज़गारी के पूरे नासूर को ख़त्म करेगी। हमने कौम से ये भी वादा किया है कि ये जो प्रोटोकॉल कल्चर इन इक़्तिदार वाली पार्टियों ने मुतारफ़ करवाया है, गरीब कौम के ऊपर प्रोटोकॉल के नाम पे आप अरबा रुपया लुटा रहे हूँ, जमात इस्लामी इस प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा करेगी। और मराआत के नाम पे जो आपका अरबों का बजट अशराफिया के लिए वक्फ किया जाता है, जमात इस्लामी उसका खात्मा करेगी। हम ज़राअत को तरक्की देंगे, हम किसान को सहूलत देंगे, हम किसान के लिए बीज, बिजली, ये सारी उसके लिए बिजली के बारे में हम उसको निसफ कीमत पे लेके जाएंगे, और आम शहरी के लिए हमने ऐलान किया है कि कम से कम 100 यूनिट बिजली हम हर घराने को फ्री देंगे। जमात इस्लामी ये कर सकती है, जमात इस्लामी ने अपने मंशूर में ये तय किया है। और साथ ही हम पंजाब को तालीम, टेक्नोलॉजी और दयानत के जरिए से पंजाब के अंदर एक अच्छा तर्ज हुकूमत मुतारफ करवाएंगे। शहरों के लिए हमारा अच्छा बल्दियाती निज़ाम का नक्शा है, और थाना कल्चर को हम ख़त्म करेंगे। ये जो थानों के अंदर जुल्म और जबर है, किसी खानदान और किसी चौधरी और वडेरे के ताबे बन जाते हैं, जमात इस्लामी इस थाने को और पुलिस को अवाम की खिदमत पे लाएगी। इंशाल्लाह ये जमात इस्लामी का मंशूर है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जमात इस्लामी करप्शन, सूद और इसी के साथ प्रोटोकॉल का खात्मा करे। वसीम अजीज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सोशल मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप की सिदारत ज़िला सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अमजद जावेद ने की। बात कर लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल टोबा टेक सिंह में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत की जानिब से सोशल मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून व पंजाब के सोशल मीडिया इंचार्ज इमरान शाहीन कर रहे हैं। उनसे बात भी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर आप बताइएगा इस वर्कशॉप का क्या मकसद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये वर्कशॉप जो है ये हमारे जो मुस्लिम लीग सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको वर्किंग कैसे करनी है वो बताना है। उसके अलावा पार्टी का जो इस वक्त मंशूर है, पार्टी क्या काम कर रही है, जो पहले प्रोजेक्ट्स थे जो पार्टी कर चुकी है उसके हवाले से बताना है कि उनको आपने सोशल मीडिया पे कैसे जो अपने लोग सोशल मीडिया पे हैं, पब्लिक है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है। उसके अलावा हमारे जो आगे इलेक्शंस आ रहे हैं उस वाले से लड़कों को अपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपकी पीपी हैं, उसके अलावा एनए है, सूबाई असम्बली है, कौमी असम्बली है, उसके अंदर जैसे काम करना है जॉइंटली, कलेक्टिवली सोशल मीडिया कैसे काम करेगा, उस हवाले से सारा लड़कों को कुछ टिप्स जो हैं वो देनी है, और कुछ एक यूनाइट काम करने के लिए सब लड़कों को उस हवाले से हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी, उनका ये ना करें इलेक्शन भी आमद है, इस हवाले से जो यूथ है उनको इंटरटेन करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए कि इलेक्शन के दिनों में
सोशल मीडिया के ऊपर जो कंपेन चलाई जाए। अहमद नदीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।